Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everything animated or inanimated that is within the universe is controlled and owned by the Lord. One should therefore accept only those things necessary for himself, which are set aside as his quota, and one should not accept other things, knowing where to whom they belong. So Prabhupada is writing, last time we discussed about Parashakti and how the Parashakti is trapped by the Parashakti. But the Parashakti, which we are the Parashakti. We have to serve the Lord. But we are serving Maya. And because of that, so many desires develop in us and greed develop. And greed says there is exploitation of nature. Or anger develops. And anger also there is exploitation of others. That's why we see so much chaos in this material world. So then Prabhupada goes on to explain. One should therefore be intelligent enough to know that but for the Lord, no one is the proprietor of anything. One should accept only those things which are set aside by the Lord as his quota. The cow, for instance, gives milk, but she does not drink that milk. She eats grass and grain, and her milk is designed as food for human beings. Such is the arrangement of the Lord, and we should be satisfied with those things which he has kindly set aside for us, and we should always consider to whom those things belong, we possess, actually belong. A house, for instance, is made up of earth, wood, stone, iron, cement, and so many other material things. And if we think in terms of Śrī Isopanīšad, we must know that we cannot produce any of these materials out ourselves. We can simply bring them together and transform them into different shapes by our labor. A laborer cannot claim to be the proprietor of things just because he has worked hard to manufacture it. So Prabhupada is explaining to us that we are just assembler, we are assembling things. We cannot be the proprietor. Krishna is the proprietor. So we should just take things that have been set aside by Krishna, because as per our karmas, and we should not become over greedy and try to exploit Mother Nature. Democracy means what? Democracy means exploitation. In democracy, you cannot expect any law and order to be maintained. Because everyone is doing anything, and just by votes, government can be changed. So the government will not act against those who are their vote bank. So कितना ही गलत करें, कितना ही खराब करें, गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्ट नहीं करेगी तो एक्ट करेगी भी. After some time they release on bail or something like that. That's why in democracy everything is topsy-turvy. Everything is, democracy means demon crazy. Everyone becomes crazy. So that's why Prabhupada said, every ISKCON center, for Prabhupada's instruction, should work to establish Varnashrama. What is Varnashrama? What is Varnashrama? Every ISKCON center should be a Varnashram, should have a Varnashram college. And leaders must engage every person and every resource properly. Varnashram management will end unemployment and famine. So what is Varnashram? Why Prabhupada is saying Varnashram? Because right now, people claim to be a Brahmana, Chaturvedi, Dhruvedi, Trivedi, whatever Vedis they are, and they are driving car. They are driving car and they are doing some watchman nokri and all these things. You claim to be a Kshatriya, but you are working like a cobbler. Right? You claim to be a Vaishya, but you are working like a technician. So people are not working as per their guna and karma. Everyone is doing some other's work. And that's why there's a chaos, and those who are really qualified to do the work are not getting the chance to do the work.
Plus the reservation has already spoiled everything in human democracy. बाकी कुछ इतने लोगों को मिल जाता है जो क्वालिफाइड ही नहीं है, राइट? तो उसी प्रकार जैसे अभी पीएम कोई भी बन सकता है. Anyone can become PM, right? You fight election, you win, then you become PM, right? But who is a PM first of all? Who should be a prime minister? इनको याद है? शौर्यम तेजो दक्षम, शौर्यम तेजो दृष्टिर daksham. Shaurya means heroism. A Kshatriya should be heroic. ऐसे नहीं कि अपने कुछ हो गया तो स्टेटमेंट भी नहीं देना है, right? Kshatriya means he has to take responsibility. Whatever good or bad happens, he has to show his power. Kshatriya cannot act like an important person. He has to show his power. His determination to do things that are even maybe difficult, and you may lose the popular vote also, but you have to do it. Determination, resourcefulness, courage in battle. How many kings, how many prime ministers fight in a battle now? Do you see any prime minister go and fight? बेचारे यूक्रेन वाले सब मर रहे हैं. वो उनका क्या नाम है, जेलेंस्की, वो कहाँ बैठा है? वो बंकर के अंदर बैठा है. बंकर के अंदर सोल्जर का यूनिफॉर्म पहन के बैठा है, राइट? दे डोंट फाइट. पुअर सिटीजन हैव टू फाइट. Poor citizens have to fight. None of them, because they don't have Kshatriya quality. So what happens? Why? Because the people who are occupying those posts, they are not Kshatriyas. A Kshatriya has to govern, because he has to govern with courage, with heroism, with power, with the resource, all the resources he has to put in for the protection of his praja. But when you don't have a Kshatriya, when you have a Sudra being elected, who elects? And who elects in democracy? People who are meat eaters, people who are smokers, people who are gamblers, people who are into illicit sex, people who are exploiting each other. They are voting for a PM. अब कैसा पीएम मिलेगा? जब आपके अंदर एक क्वालिटी है तो आप अपने क्वालिटीज के हिसाब से पीएम ढूंढोगे ना. तो इफ यू आर अ विमेनाइजर, you'll search for a PM who is a womanizer. If you are a non-veg eater, you will search for a PM who eats non-veg, who allows all these things. And so, voting, this is stupidity. Prabhupada called it. You can easily buy the votes. You can easily do some, propaganda and win the votes. Win the votes. Easy propaganda. इंडिया में एक बॉम्ब ब्लास्ट करा दो इलेक्शन के पहले और जाके फिर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, हो गया पूरा इंडिया आपके साथ में. मिल गया वोट आपको, जीत गया आप. उसके बाद में 5 साल तक राइट्स होते रहेंगे, सब कुछ होते रहेगा, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. राइट? अभी ये हो रहा है ना, मणिपुर इज बर्निंग नाउ. फ्यू डेज बैक हरियाणा was burning, riots, no control, and because there is no image बना लिए कि we are very powerful, we are very strong, but वोट बैंक के सामने सब स्ट्रांग, सब पावरफुल खत्म हो जाता है. You can't take any action. रोहिंग्या चाहिए वोट के लिए, तो रोहिंग्या कुछ भी कर रहे हैं मणिपुर में, you can't do anything. यहाँ पे हरियाणा में वोट चाहिए उनका, तो फ्रीडम है सबको. ये नहीं होता है. ये कोई टीम का लक्षण नहीं है, ये बहरूपियों का लक्षण है. बहरूपीय जो होते हैं, जो बहरूपिया कौन होता है? जो टीम का रूप धारण करके बैठ जाता है, लेकिन वो होता नहीं है. मतलब एनी अदर वर्णा. सिमिलरली ब्राह्मण, हु इज अ ब्राह्मण? बताइए, ब्राह्मणी क्वालिटीज क्या है शास्त्र में? क्या बताइए? सम, दम, तप, शौचम,
Shantir, 52 shloka. What is that? Peacefulness, self-control, austerity, purity, tolerance, honesty, wisdom, knowledge, religiousness. These are the qualities for the Brahmana work. अभी आजकल ब्राह्मण लोग तो क्षत्रियों के चमचागिरी में लगे रहते हैं फोटो खिंचाने के लिए. तो कहां से बोलेंगे भैया कि आपको ऐसे काम करना है? ब्राह्मणा मीन्स ही हैज टू गाइड क्षत्रिय. बट राइट नाउ जो भी है सो कॉल्ड ब्राह्मण क्लास, उनको तो अपना है कि हमको हमारा क्या फायदा हो रहा है. तो वो पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, क्षत्रिय के चमचागिरी में लगे हुए हैं, ना कि उनको ज्ञान दे रहे हैं कैसे करो का. तो उससे क्या होगा? उससे क्षत्रिय बराबर नहीं चलेगा. क्वालिफाइड ब्राह्मण नहीं है ना. ब्राह्मण वही है जिनके पास में पीस, जो आर नॉट पीसफुल, दे हैव नो सेल्फ कंट्रोल. तो उनको नेम फेम चाहिए, सीएम बनना है. जब ब्राह्मण ही सीएम बन जाएगा, जो किंग का काम है, तो फिर हो गया आपका हरि बोल. कुछ नहीं हो सकता. ऑस्टेरिटी, प्योरिटी, टॉलरेंस, ऑनेस्टी. पॉलिटिक्स में कोई ऑनेस्टी आएगी? इफ यू ज्वाइन पॉलिटिक्स, हाउ विल यू बी ऑनेस्ट? पॉलिटिक्स मीन यू हैव टू टेल लाइज, 100 लाइज. हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया. ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हुआ. हमने ये किया, हमने वो किया. 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आ जाएंगे. ये सब होगा तो कैसे चलेगा? कहां चलेगा? यू हैव टू लाई. अ पॉलिटिशियन हैज टू लाई, अ वैश्य हैज टू लाई, बट अ ब्राह्मण हैज टू स्पीक द ट्रूथ. जो ब्राह्मण को जाके एक क्षत्रिय को बताना पड़ेगा कि दिस इज हाउ यू आर डूइंग रॉन्ग, यू हैव टू करेक्ट. एंड यदि वो नहीं करेक्ट हो, जैसे चाणक्य पंडित ने जब गया था नंद के पास, तो उन्होंने बोला तुम बराबर नहीं कर रहे हो. तो नंद ने बोला निकलो ब्राह्मण यहां से. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तख्ता पलट कर दिया. तो ब्राह्मण में ये पावर होना चाहिए कि तख्ता पलट कर दे. हमारे यहाँ पे ब्राह्मण में तो सब वो पॉलिटिशियन के चमचे में होके बैठे हैं. कहां से तख्ता पलट करेंगे? जिस पॉलिटिशियन ने वो जमीन दे दी, उनके हो गए, वो गुणगान गा रहे हैं. सो 15 लाख भी टैक्स पेयर का होगा. You have to speak very, what do you say, courageously. Like Prabhupada, when he wrote a letter to Indira Gandhi, Prabhupada was very, this you have to do. So diplomacy nahi hai. Bhaiya, everyone knows 10 points of Prabhupada to Indira Gandhi. Clear. All MPs should be initiated Brahmanas. And this is how, a spiritual leader has to speak to a politician. Not that, कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो. ओ मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सब जितने जिनको लेके आ जाओ ना, सब तारीफ करेंगे. But Prabhupada is talking to Indira Gandhi, who was supposed to be the most powerful. And Indira Gandhi had already won the Pakistan war. I think after that Prabhupada wrote. So she was on the top of her popularity. तो ऐसे पॉलिटिशियन के सामने जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स है हमारे इंडिया के, सब लाइन लगा के खड़े थे फोटो खिंचाने के लिए. बट प्रभुपाद क्या लिखते हैं? इफ यू रियली वांट, देन ऑल एमपीज शुड बी इनिशिएटेड ब्राह्मणास बाय गुणा एंड कर्मा. बिकॉज ओनली देन यू कैन गाइड अ कंट्री. यू नीड ब्रेन टू गाइड द कंट्री. यू कांट हैव पीपल हु आर नॉट क्वालिफाइड, स्कूल फेल, दे बिकम एमपीज. वहां क्या करेंगे जाके? फिर वो अपना पैसे ही बनाएंगे ना. वो पैसे के लिए आए हैं एमपी बने. वो पैसे के लिए एमपी बने क्योंकि वो तो अंगूठा छाप है, तो उनको तो मिल गया पॉलिटिशियन बनने का. तो दिल तो करप्शन दे. भैया इसका काम करा दो, उसका काम करा दो, उसका काम करा दो, पैसे लाओ. आपको एडमिशन चाहिए लॉ कॉलेज में, 2 लाख रुपए लाओ. मेडिकल कॉलेज में चाहिए 10 लाख रुपए लाओ. ऐसे ही होगा अगर qualified MPs नहीं होंगे तो. Person who is qualified in understand that okay, I have to work for the benefit of the प्रजा. यहाँ तो अपना खुद का ही बोलते हैं ना, क्या अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता. तो हमारा काम बन रहा है तो ठीक है. हमारा घर अच्छा बन गया,
अभी जैसे हमारे सीएम ने अपनी कोठी बना ली है बंगला दिल्ली में, इतना बड़ा बंगला उनने चालू किया था। आम आदमी फटा हुआ चप्पल पहन के घूमूंगा, गाड़ियां नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, और अपने अपना बना लिया उन्होंने अपना मैंशन दिल्ली में, अपना मैंशन, अपना विला बना लिया उन्होंने। तो अभी ऐसे लोग पॉलिटिशियन को चूज करेंगे जो क्वालिफाइड, जो अपना जनता जाए भाड़ में, हमको तो हमारे घर बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, तो फिर हाउ विल यू गेट एनीथिंग? All the politicians, whether this side, that side, BJP, Congress, this, that, they all are, corrupt. All are corrupt because they don't know how to govern. So क्या करेंगे वो? करप्शन ही करेंगे, करना ही पड़ेगा उनको। सेंस कंट्रोल नहीं है। पैसा दो, अभी देखो ना कैसे पलट हो जाती है। 40 के 40 MP यहां से वहां चले जाते हैं। ये क्या बिना पैसे के होता है? ये कहीं बिना पैसे के हो सकता है ऐसा? देखो, आपने वोट दिया उनको कि वो जाके गवर्न करेंगे, और वहां पे क्या हो रहा है? 40 के 40 MP यहां से वहां चले गए। तो आपका वोट भी गया कि किसको वोट दिया था, कुछ नहीं। एंड वो फ्री में तो कोई जाएगा नहीं, पैसे लेके फ्री में आया है ना। कोई इंसान अपने पिता का काम नहीं करता आजकल। फादर बोलेगा ना कि भैया मेरा एक काम कर दो, बोलेगा मेरा क्या फायदा, आप मुझे कुछ दे रहे हो क्या, वो बोलेगा। और आपको लगता है ऐसे 40 MP ऐसे यहां से वहां चले गए। मनी, करप्शन इन्वॉल्व। So this is what happens when you are unqualified, then you get such leaders. And then क्या होता है? महंगाई कम हो गई, बताइए। गैस के सिलेंडर के दाम कम हो गए? नहीं। काउ स्लॉटर बंद हो गया? नहीं। हाँ, बताइए। पॉवर्टी खत्म हो गई? नहीं। So when you have such unqualified people, then you get such low grade politician to govern you, right? अभी चाइना हमारा लैंड ग्रैब कर रहा है। यहां तो पाकिस्तान के ऊपर जाके सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, वहां पे चाइना हमारे लैंड के अरुणाचल में और लद्दाख में लैंड पे बैठा है हमारे। वहां पे कहा गया 26 इंच का छाती, क्षत्रिय ब्लड, कहां गया वो? चाइना के सामने टाइटर फिश हो गया। पाकिस्तान बच्चा है, उसको दुनिया मार रही है, तो आप भी मार रहे हो। क्या हो गया उसको मारने से? बट पर्सन दिस इज वॉट कि ब्ला 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 ब्ला। पॉलिटिशियन का मतलब ब्ला 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 ब्ला, जो अनक्वालिफाइड होते हैं। जो रियल में होते हैं वो शिवाजी महाराज ने सोचा नहीं था कि मैं कितना बड़ा हूं, कितना छोटा हूं। मुगलों के सामने लड़ लिए वो, राइट? मुगल वर रूलिंग द होल कंट्री व्हेन औरंगजेब, बट शिवाजी डिड नॉट थिंक अरे आई एम सच ए स्मॉल, मैं कहां से लड़ूंगा। व्हेन ही वाज अ क्षत्रिय। क्षत्रिय सोचते नहीं है, क्षत्रिय अपना काम करते हैं, क्षत्रिय धर्म निभाते हैं। ये लड़ लिए और he defeated औरंगजेब एंड इट 70% इंडिया पे रिकैप्चर कर लिया। मराठा एम्पायर हो गया। महाराणा प्रताप डिड नॉट थिंक ना कि अकबर इतना पावरफुल है, क्योंकि अकबर ने तो पूरा राजस्थान को, मेवाड़ के अलावा फुल राजस्थान वॉज अंडर अकबर, गुजरात वॉज अंडर अकबर, यूपी वॉज अंडर अकबर, दिल्ली वॉज अंडर अकबर, पंजाब वॉज अंडर अकबर। मतलब राजस्थान को चारों तरफ से घेर लिया था अकबर ने। महाराणा प्रताप बीच में बैठे हैं। क्षत्रिय ही नेवर गिव अप, ही वन बैक एवरीथिंग। नहीं क्षत्रिय ना, ऐसा नहीं कि अरे ले लिया क्या करे, है ना, कॉम्प्रोमाइज कर लो। व्हाट इज दिस कॉम्प्रोमाइज? नॉट अ वर्क ऑफ क्षत्रिय। जो क्वालिफाइड क्षत्रिय होते हैं वो फिर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। They fight with set example. They fight with example. They don't do it. वो क्या बोलते हैं ना, डिस्प्ले करते हैं अपना वैलर, अपना फाइटिंग नेचर। दे आर रियल क्षत्रियस। दे डोंट कीप क्वाइट। या अपने सोशल मीडिया को लगाओ कि भैया ये चाइना की खबर को दबा दो, उन्होंने लैंड ग्रैब किया, उसको दबा दो क्योंकि हमारे पॉपुलैरिटी पे प्रॉब्लम हो जाएगी। वो ऐसे नहीं करते हैं। वो जाते हैं, ठीक है क्या होगा, मरेंगे ना, मर जाएंगे, नो प्रॉब्लम, जाके लड़ते हैं, राइट? नहीं क्षत्रिय, नहीं क्षत्रिय धर्म। वी हैव सो मेनी नेम्स। दुर्गा सिंह राठौड़, दुर्गा सिंह राठौड़। एनीवन हर्ड दुर्गा सिंह राठौड़? भरतपुर, दुर्गा सिंह राठौड़ नाम सुना है किसी ने?
नहीं सुना है, देखो, क्योंकि हमको वैलर की, हमको किसका न्यूज सुनाते हैं? महात्मा गांधी। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, इंडिया को फ्रीडम दिला दिया बिना खड़क बिना ढाल के। साबरमती के संत ने डंडा लेके गए, ब्रिटिशर के सामने बोले, ब्रिटिशर जी आप जाइए यहां से कृपा करके। विजय बोले ठीक है ठीक है, संत ने बोला है हमें, हम जा रहे हैं इंडिया छोड़ के। तो साबरमती के संत ने कर दिया कमाल, बिना कड़क बिना ढाल, हिंदुस्तान को फ्रीडम दिला दिया। और ब्रिटिशर लोग उनका ही वेट कर रहे थे, कब आएंगे डंडा लेके कोई संत हमारे सामने, और बोलेंगे प्यार से आप जाइए और हम जाएंगे। वो इसलिए आए थे इंडिया में ना, कि प्यार से कोई बोलो निकल जाएंगे, प्यार से कुछ नहीं होता। तो हमने उनका नाम सुना है जिन्होंने कुछ नहीं किया फ्रीडम के लिए, लेकिन दुर्गा सिंह राठौड़ का नाम नहीं सुना हमने। दुर्गा सिंह राठौड़ थे 500 वॉरियर, दुर्गा सिंह राठौड़ भरतपुर के, जिन्होंने 10,000 मुगलों को गाजर मूली देकर काट दिया था। 500 लोगों ने 10,000 मुगलों को। और क्यों काटा? क्योंकि जो किंग था, किंग मर गया था वॉर के अंदर, तो किंग का बेटा था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि किंग का बेटा किंग बनेगा, उसको अगर मुगल उसको भी मार देंगे, उसको ये मार देंगे या ये बना देंगे, तो भरतपुर जाएगा हमारे हाथ से। तो भरतपुर के प्रोटेक्शन के लिए 500 दुर्गा सिंह राठौड़ के अंदर 500 क्षत्रिय राठौड़ थे उसमें, और उन्होंने 10,000 की मुगलों की सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया। ये है क्षत्रिय। तो दिस इज व्हाट इज वैलर। वेयर इज दिस ब्लड? क्वालिफिकेशन नहीं है ना हमारे। जब व्हाट हैपेंड व्हेन द ब्रिटिशर्स केम, दे सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड आवर वर्ना सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। क्षत्रिय को तो उन्होंने क्या लगा दिया? लत लगा दी, वाइन की लत। हाई सोसाइटी इनमें इनवाइट किए और उनको वाइन, ये देखो ये आप पियो, जूस करके वाइन पिला के उनको वाइन की लत लग गई। वंस यू आर वाइन, वन यू हैव ड्रैंक वाइन, यू आर इंटॉक्सिकेटेड। कोई इंटॉक्सिकेटेड आदमी वैलर नहीं दिखा सकता। वाइन एंड विमेन, या कोई इंटॉक्सिकेटेड आदमी वैलर नहीं दिखा सकता। तो क्षत्रियों को ऐसे किया। ब्राह्मणों को उन्होंने खत्म ही करवा दिया मुगलों से, और पहले मुगलों ने कर दिया, उसके बाद में वैसे ब्राह्मण कोई क्वालिफाइड थे भी नहीं, फिर वो क्षत्रिय थे क्वालिफाइड, उनको भी उन्होंने विमेन और वाइन की लत लगा दी, एंड दे डिस्ट्रॉयड। So Prabhupada is telling, that Prabhupada is saying here to again set the society in proper order so that everyone is happy, everyone can stay happy. Prabhupada is writing here. Prabhupada, business, the politician business will be to exploit the poor citizen, and they will be embarrassed and harassed so much. By one side, no sufficient rain, and therefore scarcity of food. Rain, no sufficient rain. बारिश कहां से आती है? How does it rain? रेन कैसे आती है? यज्ञ से आती है। यज्ञ पुरुष कौन है? विष्णु है। विष्णु को आहुति देते हो तो रेन आती है। When Vishnu is happy, all the demigods are happy. Vishnu gives all, when Vishnu collects all their offerings and gives to the demigod, and the demigods are happy, it showers rain, right? It is like, a dam collecting everything and giving, अलग-अलग जगह पाइपलाइन में पानी डालना, फिर अपना घर पे आपके पानी आ जाएगा। उसी प्रकार विष्णु collects all the offerings and distribute it to rain god, to sun god, to वायु god, and so that जो एरिया में सेक्रीफाइस हो रही है वहां पे सब कुछ परफेक्टली मेंटेन रहे, वहां पे ना ज्यादा ठंड हो, ना गर्मी हो, ना रेन हो, ना ये हो, परफेक्ट बैलेंस इज मेंटेन। अदरवाइज क्या होगा? जहां पर यज्ञ नहीं होगा वहां पे अभी जैसे हो रहा है, बाढ़ पे बाढ़ आ रही है हर जगह। हमने देखा था हिमाचल में क्या हुआ थोड़े टाइम पहले। दिल्ली का हम देखते हैं पानी भर गया, बॉम्बे पानी भर गया, यहाँ पानी भर गया इतना। इन द वैदिक टाइम it used to never rain in the daytime. Rain used to come in the night time, only in the night time, and only in that place where rain is required. For example, reservoir of water, lake के ऊपर, river के वहां पे रेन आती थी, है ना। रेन नॉर्मल कॉमन इंसान को परेशान नहीं करती थी वैदिक टाइम में, बिकॉज
The sacrifice were done. Yagna was happening. People were religious, sattvic. So even the nature did not create hurdle for the people. So it used to rain in the night time, not in the daytime. Daytime public अपना काम करे, खेती बाड़ी करे, सब कुछ करे, उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो. और जब नाइट में सब सो रहे हैं तो रेन हो, और वो भी वहां पे हो जहाँ पे रेन की जरूरत हो, जैसे रिवर, लेक, ये जगह. If you see, when Krishna was born, that time also it was raining what? In the night time only. It was raining only in the Yamuna. केवल यमुना के ऊपर रेन हो रही थी वो टाइम पे. If you notice, if you read properly the Shastra, it is said that, when Vasudeva took Krishna, it was not raining that time. But when as Vasudeva entered Yamuna, it started raining. So the whole rain was only in the Yamuna. कि यमुना का बैलेंस बना रहे. ऐसा नहीं कि लैंड पे रेन करके वहां पे फ्लड कर दे और प्रॉब्लम कर दे. नहीं, that is not how Vedic time worked. Everything was perfect balance. So because people were doing yagna, अभी यज्ञ नहीं है तो अभी सफिशिएंट रेन नहीं है, और है रेन तो बहुत एक्सेस रेन है, कभी कहीं पर बिल्कुल रेन नहीं, कहीं पर ज्यादा रेन है. दोनों प्रॉब्लम है. उससे क्या होगा? स्कैर्सिटी ऑफ फूड. दोनों ही में स्कैर्सिटी फूड होगा. ज्यादा रेन होगी तो भी स्कैर्सिटी हो जाएगा, क्योंकि आपका वेजिटेबल है वो खराब हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा रेन मतलब क्रॉप्स मर जाएंगे एक्सेस रेन में. और जहाँ पे स्टोरेज है वहां पे भी रेन हुई तो पानी भर के खत्म हो जाएगा. जब भी टमाटो की रेट अभी ऐसी हो गई ना, इतनी टमाटो की 120, 180, 140, क्यों? क्योंकि बड़ी बारिश हो गई, क्योंकि अब स्टॉक होर्डिंग हो गया, स्टॉक लेस है, बिकॉज काफी स्टॉक खत्म हो गया बारिश के कारण, फ्लड में तो नहीं है. तो एक्सेस भी आपका स्कैर्सिटी कर देगा या 200 रुपए, और ज्यादा रेन भी आपका प्रॉब्लम करेगा, कम रेन भी आपकी प्रॉब्लम करेगा. ये होता है कलयुग के अंदर. Why? Because the king is demoniac. The king. ये समझना पड़ेगा हमको. कोई भी समाज में अनरेस्ट है ज्यादा, क्योस है ज्यादा, ये सिम्टम्स है समझने के. तो यू कैन अंडरस्टैंड. यू डोंट रिक्वायर टू क्या एक लीडर रियली में धार्मिक है या नहीं है. ये सब सिम्टम्स से मालूम पड़, ये सब मार्कर से मालूम पड़ सकता है. क्या उस कंट्री में ज्यादा क्योस है तो लीडर धार्मिक नहीं है. क्या उस कंट्री में ज्यादा फेमिन या ड्राउट्स या रेनफॉल या ऐसा होता है, इनबैलेंस है, तो लीडर इज नॉट धार्मिक. क्या वो कंट्री में ज्यादा डिजीजेस फैलती है तो द किंग इज नॉट धार्मिक. All these things, because if a king is dharmic, then all these symptoms are given. That person, a wife can never become widow. A wife will not become a widow if the king is dharmic. She will always die. Sada suhagan bolte na, sada suhagan. She will always die before the husband. Because a life after the husband is very bad for a woman. For a woman, a life after the husband is very bad. Why it is bad? Because after the husband dies, the woman has to maintain herself by, such bad thing. Evil eyes are on her, and exploitation is there, and tana sunna, inka, unka, sabka. So that's why when a king is very, dharmic, then, the women will never die. The son, there will be never a young death. There will never be a younger. A person will not die young in a country where the king is dharmic. These are all the symptoms. There will be no scarcity of food in that country. There will be no disease in that country. So these are all the symptoms of a king who is really qualified, who is sitting on the ashram there, in Delhi. But if you don't see, if there are rapes every day, murder every day. I was just seeing a video of एक दिन yesterday, ओपन में एक आदमी दूसरे आदमी को चाकू मार रहा है, पता नहीं ट्विटर पे था कि मारे जा रहा है, उसका पूरा खून है, वो उसको मार रहा है, एंड शॉप वाले वहां पे खड़े हैं और वो लाठी लेके. सोसाइटी वेयर द लीडर इज स्ट्रॉन्ग, ये क्या दर्शाता है कि एवरीवन इज फॉर हिम. देयर इज अ क्योस इन द सोसाइटी. पीपल आर जस्ट किलिंग, पीपल आर डाइंग. कोई आके किसी लड़की को चाकू मार के चले जाता है,
कोई आके कन्हैया का गर्दन काट के चले जाता है, कोई यहाँ राइट्स कर रहा है, कोई वहां पे हो रहा है. क्या हो रहा है सोसाइटी में? सोसाइटी इज इन अ बिग क्योस. इसको क्योटिक सोसाइटी बोलते हैं. देयर इज नो वन सेफ इन द सोसाइटी, राइट? So this is where, because the king is not dharmic, so then there will be always chaos in that society. As the Prabhupada is saying here, there will be scarcity of food, there will be chaos. On the other side, the taxation by the government. The government will burden you by levying taxes and taxes and taxes. इतने टैक्स आपके ऊपर हो जाएंगे, पहले तो आप इनकम टैक्स देते हो, ठीक है, फिर जो कमाया उसके ऊपर आप जीएसटी भी देते हो, फिर इनडायरेक्ट जो भी आप खरीदते हो उनके ऊपर भी जीएसटी लगा हुआ होता है. कितने वे में आप टैक्सेस देते हो? अभी सोचा है आपने? इनकम टैक्स, बिजनेस में तो जीएसटी दे रहे हो, उसके में आप एक बिस्किट लो, एक कुछ भी लो, उसके अंदर भी खाना खाने जाओ, वहां भी जीएसटी लिखा होता है, तो जीएसटी, तो आपका पूरी उम्र खाली टैक्सेस में चले जाती है. आपका पूरा आमदनी खाली टैक्सेस देने में चले जाते हैं, क्या कमाओगे? So this is what happened. Yeah, tax will be more. It was more in the 70s, 80s. You know how much was the income tax? 70% was the income tax. In the 70s, 60, 70% was the income tax. More than that in the 70s, 80s. तो जब मार्केट ओपन हुआ उसके बाद में जो टैक्सेशन है 10%, 5%, 10%, 15%, 20%, 30% पे आया, वरना इनिशियली 70-80% टैक्स था जो भी इनकम करता था. That is what, there'll be chaos. People will be taxed by the government. In this way, people will be so harassed. Prabhupada बोलते हैं, so much harassed that they will give up their home and go to the forest. Unless they take to Krishna consciousness, they will not be saved. The Varnashrama college has to be established immediately, Prabhupada बोल रहे हैं. Everywhere, wherever we have got our centers, a Varnashrama college should be established to train 4 divisions, 1 class Brahmana, 1 class Kshatriya, 1 class Vaishya, and 1 class Sudra. But everyone will be elevated to the spiritual platform by spiritual activities, which we have prescribed. There is no inconvenience even for the Sudra. So this is how, that you have a qualified person, like Chanakya Pandit बोलते हैं कि tax इतना मत करो कि public हाय करे. The tax should be like, very nice. कम करो, that people can give you. But हम वही colonial system follow कर रहे हैं, जहाँ पे हर चीज टैक्स होती है. इसलिए क्योस, इसलिए आदमी बस somehow other black money कमाना चाहता है, क्योंकि उसका टैक्स का पैसा बच जाएगा. फिर व्हाइट आदमी बताता नहीं अपना पैसा. तो ये है. So क्या होगा उससे? Proper Brahmana will be, get trained in the Varnashrama college. Prabhupada is saying proper Brahmana. Then that Brahmana will create proper Kshatriyas. As Indira Gandhi Prabhupada said, all MPs must be initiated Brahmanas. So that is what Varnashram. We will give qualified Brahmanas who can become MPs, MLAs of future. And then become and proper Kshatriyas, who can govern the country, and over them, guided by a nice Brahmana, a nice Kshatriya who can, who can really guard the country. Abhi kahan hai? Where are the Kshatriyas? There are no Kshatriyas. Abhi fighting ka valor hi nahi kisi ke andar. I was saying, previously, such high level of Kshatriyas, everyone was there. Like, Rathi and Maharathi and all the people. One person could fight with thousands of people. Now with machine gun also you can't fight with so many people. Right? Previously, just by bow and arrow or talwar, one Kshatriya could fight thousands and thousands of people. He was so well trained. Training is required. This is called training. You have to be trained to achieve that kind of valor. ऐसे नहीं होता है कि आप बिना ट्रेनिंग के आप क्षत्रिय बन जाओ. For training, we also people give in this, that is also not the real Kshatriya training. The real Kshatriya training is, you read, Mahabharata. In that it is said, it is described how Kshatriyas are trained into valor. They have to fight
tigers and lions alone, so that just to show that they are powerful. Then they have to fight among themselves, like, Karna and Arjun fight happened, who was Shrestha. So Karna was also releasing all the arrows and Arjun was also releasing. And there was this fight, like that Kshatriyas used to fight. Who is the greater? Gurukul में क्या होता था? जब सब क्षत्रिय हैं, तो उनमें से सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय कौन है? उनके अंदर बैटल होता थी क्षत्रियों में. तलवार बाजी, bow and arrow, bhala फेंकना, how far you can throw the bhala, what is your stamina, how much you can run, पूरा सीमेंट का भर भर के, और you have to run kilometers and kilometers and come. Then घोड़ा बाजी कैसे, then martial arts, how good are you in martial arts, and then can you fight, if you're blinded also. उसको बोलते हैं शब्द बेदी बाण. The last person to know about the Shabda Bedi Ban was, who was the last person who knew how to release Shabda Bedi Ban? Ashwatthama taught him Shabda Bedi Ban. That's why when he was blinded and Mughal was sitting, so he could, just by uttering the word, what is the distance, he could hit the arrow and straight in the chest of that Gajni. Or Gajni tha kaun tha? Mahabharat ka Ashwatthama was the guru of Prithviraj Chauhan in Shabda Bedi Ban. He taught him Shabda Bedi Ban, where he could, just by the sound vibration, the sound of, he could understand कि कितना किलोमीटर से दूर है, कितना मीटर दूर है, कितना इंच दूर है, वो इंसान कहाँ पे है, this was all taught in Gurukul. गुरुकुल में क्या होता था पहले, आपके आंखों में पट्टी डाल देते थे, okay, and then lion को छोड़ देते, and then you have to fight that lion with the patti in your eyes. And if you are not strong, you will be killed by the lion. And if you are strong, you will kill the lion. So this is how the training used to happen. People were made so much courageous, so much, उनको मौत से डर ही नहीं लगता था. क्या डर होगा किसको? लायन के सामने आप बिना, देखे खड़े हो, आंख में पट्टी बांधी है और अब लायन के सामने खड़े हो, तो आपका डर तो क्या, if you want to survive, you have to fight. Right? You have to learn the art of survival then. If you are put in such a situation, most of 100 में से 99 लोग मर जाएंगे, एक जन समझ सीख जाएगा, वो king हो जाते थे वैसे. So the king training was very, very rigorous training. All and psychological warfare and everything, was taught. Propaganda warfare and so many different things. So that is how Prabhupada is saying, we should have, these colleges, Varnashrama college, where we are taught all these things. Yeah, these were, there were these, 8 or 9 things that were taught, to the Kshatriyas and the Brahmanas especially. कौन सा था number 1? Sociology. Sociology में क्या होता था? Touch by, death by touch. A person could, touch, kill anyone with the touch. How? By, आपका जो nerve होता है, उनको पता है ये nerve को touch करने से, आप कौन से nerve को touch करने से you can be killed. So nerve को touch करके they could kill people. So पहले के टाइम पे, बड़े लोग होते, जो किंग हो, आपके सामने कोई बड़ा राक्षस भी खड़ा है, तो उनसे भी क्षत्रिय भिड़ जाते थे. कैसे भिड़ जाते थे? बिकॉज वो क्षत्रिय को पता है कि हाउ टू किल दैट डीमन ऑल्सो. खाली बस उसको वहां पहुंचना है, वो नस के पास में, और जैसे नस के पास पहुंचा और नस को दबाया, एंड दैट पर्सन विल डाई. सो दे न्यू these arts. That's why
क्षत्रिय को किसी से डर नहीं लगता था. Even the Brahmanas were taught, because Brahmanas also had to, teach to the Kshatriyas, future Kshatriyas, and also have to guard themselves if they have some such, So this was. Then the second was communication. Communication kaise? The king was taught, I'm telling these are, as we have our Varnashrama college, then ये सब चीज पे रिसर्च करना पड़ेगा. एंड जैसे अभी साइंटिस्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन किससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो. ये कोई नया कम्युनिकेशन का नहीं है. ये सैटेलाइट और ये स्पेस में सिग्नल भेजना, ये सब कोई नहीं है. दिस वॉज ऑल टॉट इन द गुरुकुल. कम्युनिकेशन, there was a book, with techniques between, how could people communicate between earth and the alien creature. So ये 2000 साल पहले तक इंडिया में टेक्निक थी. 2000 साल पहले तक Indian kings could communicate. The last king who could communicate with the aliens, कौन था? Who was the last king who could communicate with any extraterrestrial? Ashoka. Ashoka was the last king who could communicate with extraterrestrials. Obviously, Chanakya Pandit also used this, to get the Viman from Siddhalok, Simhachala, and to destroy Alexander. So this communication technique, how to communicate, those things used to be taught in the Gurukul. This is high class science. लोगों को लगता है गुरुकुल मतलब शेंडी चोटी में लोग भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं. नहीं, these are the real science that was taught in our Gurukul, which was there in existence till 2000 years back. ये हमने लास्ट 2000 साल में अशोका ने जो गलती किया, ये सब बंद कर दिया उन्होंने. गुरुकुल जो तक्षशिला का था, नालंदा का था, जहां पे ये सिखाया जाता था, जिसने चाणक्य पंडित ने जो एस्टेब्लिश किया था तक्षशिला, वहां पर के सारे वैदिक ब्राह्मणों को ये कर दिया अशोका ने, डिसबैंड, मतलब सस्पेंड. एंड तक्षशिला नालंदा को बस एक जो केयरटेकर के हाथ में छोड़ दिया. जब वो हुआ तो फिर जब वो आए मुगल, उन्होंने जला दिया. कोई वहां पे कोई था ही नहीं उसको बचाने के लिए. इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए कोई था ही नहीं, बिकॉज किंग्स लोगों ने देखना बंद कर दिया. तो जब वो आए तुर्क और ये सब, जलाया तक्षशिला को. महीनों तक जलती रही वो, क्योंकि वहां पे कोई प्रोटेक्ट करने वाला था ही नहीं. इतनी बड़ी नॉलेज जो हमारे पास थी, डिस्ट्रॉय हो गई. सो दिस इज व्हाट इज when Prabhupada says that we have to re-establish Varnashram. He's not talking of some, people running here and there with shikha and, doing some, orthodox things. No, he's talking of higher level science, which will be taught in the Varnashram college. Because this all has to come back slowly, gradually over the period of 100, 200, 300, 500, 600,000 years. All this research and everything has to happen in this. Communication skills. Then gravity. There was a book, which was known as, Viman Shastra, where in that book, the secret of gravity and how to build aircraft, Viman, which could, just go sida up, now the aircraft, they're also building, the Americans. I think F-35, apne aap, it doesn't have to run on the, airfield. It can just take off, So that is called anti-gravity, vertical takeoff, anti-gravity. All these, there was secret of gravity, how to control gravity. And Mercury, हमारा जो विमान शास्त्र था, उसमें Mercury was the engine, मतलब the source, the what do you say, energy source. Mercury was the energy source. So not the petroleum and all. Mercury was, and Mercury could go on for, hundreds and thousands of years, without getting finished, recycled. And,
Viman Shastra, if you read Vaimanika Shastra, it is that it had the technology to become invisible. Invisible मतलब कैसे होता था invisible? वो जो जहां पे उड़ रहे हैं ना, वो जगह को वो कैमोफ्लाज अपने तो एयरक्राफ्ट है क्योंकि वो ग्लासी है, ग्लास होता है ना, ग्लास कर सकते हैं. तो अब आप क्लाउड में जा रहे हो तो वो उड़ रहा है विमान, अचानक गायब हो जाता है. गायब नहीं, विमान वहीं है, बट उसने अपने आप को ग्लास कवर लगा दिया, तो अब उसके ऊपर क्लाउड का रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, तो पूरा वो क्लाउड लग रहा है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि विमान कहां पे है. सो दे हैड दैट टेक्नोलॉजी, फ्यूल, fuel was mercury, and this technology also, and it was Mach 50 or 60 speed, maybe even 100 speed. That was the speed that it could reach those vimanas very fast. So that technology was there in gravity. They knew how to control gravity, and they could. And now if I go more into detail, in the battle between Porus and Alexander, it is said that there was a mother ship. अभी आप लोगों ने देखा होगा, कितने लोगों ने देखा है स्टार वॉर्स या स्टार, जो भी है, क्या स्टार ट्रैक, स्टार वॉर्स, या कितने लोगों ने देखा है सब. तो उसमें एक मदरशिप होती है. मदरशिप होती है स्पेस में, उस मदरशिप में बहुत से स्पेस क्राफ्ट होते हैं, राइट? देखा है सबने? एक मदरशिप होगी, बहुत बड़ी मदरशिप होगी, उसके अंदर बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट होते हैं, जिसको लेके देन यू कैन गो टू द नेबरिंग planet or something like that. So this is not a new concept. If you read, if you understand, if someone has done research, विमाना में एक मदरशिप होती थी, मदर विमान. मदर विमान के साथ में many secondary vimans used to be there. So जो मदर विमान होता था, that could do inter-Brahmanda travel. One Brahmanda to other Brahmanda it could go. And फिर वहां पे जाके जो प्लैनेट्स में घूमना है, वहां पे वो जो स्मॉल विमान थे वो करते थे. So this was, this kind of high-tech technology was there. Then microbiology, knowledge of microbiology and biotechnology was also taught in Gurukuls. ये जो Varnashrama college है. Then propaganda, psychological warfare tactics. कितने लोग ने देखा है art of war? Art of war. How many of you know about the art of war by China? Art of war ही है ना उनका. They have some name for it, I forgot. जहां पे बिना एक ब्लड ड्रॉप किए हुए, बिना कुछ किए हुए, you win the whole war. Anyone, art of something है, I forgot the name. Art of war है, चाइना की philosophy है. Where without one drop of blood you win the whole war. That is called psychological warfare. Propaganda. ये प्रोपोगेंडा में सामने वाला हथियार डाल दे. आपको पता है, ये फैलाना रूमर्स, सामने वाला 1 लाख की सेना के साथ में आ रहा है. अच्छा, उस सेना में क्या क्या है, वो लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से. प्रोपोगेंडा फैलाना. अरे वो सेना में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र है, केमिकल्स हैं, वायरसेस हैं. सुन तुंजू आर्ट ऑफ वॉर. वो ऐसे बड़े स्केल पे रूमर फैलाना. वो किंग के पास में रूमर जाते हैं और किंग देखता है अपने लोग, अरे यार अपनी तो सेना खाली 10-15 हजार 20 हजार की 30 हजार की है, सामने वाले की 1 लाख की सेना, और उसके में ये सब है, चलो है ना, समर्पण कर दो, अपने लोगों को बचाओ. तो ये होती है. और वो इतना सिस्टमैटिकली किया जाता है, इतना सिस्टमैटिकली कि वो एकदम सच लगे. फियर साइकोसिस अपने प्रजा में फैल जाए सबके, तो वो प्रजा
राजा को फोर्स कर दे कि यार आप समझौता कर लो, आप हथियार डाल दो, हमको मरना नहीं है. तो इसको बोलते हैं प्रोपोगेंडा वॉरफेयर. सो दिस इज हाउ दे यूज्ड टू फिर मालूम पड़ा सामने वाले के पास में 500 की सेना भी नहीं है, और उसने इतना अच्छा प्रोपोगेंडा कर लिया और हथियार भी डलवा दिया, पूरा किंगडम जीत गया. कॉस्मोलॉजी, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, एक था एक सब्जेक्ट होता था गुरुकुल में, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, कॉस्मोलॉजी, जो हमारे इसमें भी वैदिक कॉस्मोलॉजी विच आर साइंटिस्ट आर डूइंग. देन alchemy. What is alchemy? Where you mix with any metal with mercury and something, and you can turn that into gold. तो पूरा एक प्रोसेस है alchemy, जिसको alchemist जिसने जो he was trying but he couldn't succeed because he tried, but obviously जो some information होती है वो उसके हाथ से छूट गई. जैसे I know that mercury is liquid, right? Mercury is liquid. Right? सबको पता है mercury liquid होती है. I can make solid mercury. Mercury is solid. Yeah. So you have to add it with a chemical. There's a chemical, you have to add that and you can make mercury into solid. We have one murti of solid mercury. This is what is taught in Gurukul. ये पूरा एक साइंस है. ये हमारा मॉडर्न साइंस क्रैक नहीं कर पाया इस चीज को. Similarly, there was a science where any metal को आप mercury से charge मिलाओगे and you can turn that metal, and there is 2-3 more metals are there and things are required. कोई भी मेटल को आप गोल्ड बना सकते हो. Back to the Porus and Alexander war. If you read that war, how it was described, they said when the Vimanas came from the Himalayas, the Vimanas that were called by Porus from the Himalayas, when they came, they started showering laser beams. Laser beams. तो अभी हम अभी की बात करते हैं ना, लेजर का इसका उसका है ना, ये वो टाइम पे लेजर बीम्स वर ऑलरेडी देयर, showering. So people knew how to use light, and with light, actually, this Maharaj Priyavrata only, yeah, Maharaj Priyavrata, उन्होंने क्या किया था? कल की लेजर वेपन या काली लेजर वेपन is basically after research from this only, because some things are there, so they did this. प्रियव्रता ने क्या किया था? Anyone knows? Remembers प्रियव्रता ने क्या किया था? महाराज प्रियव्रता ने आर्टिफिशियल सन क्रिएट कर लिया था. At one point of time there were 2 suns in this Brahmanda. So जो कुछ टेक्स्ट में आप लोग को मिलता है ना कि 2 सन थे, वो एक्चुअली वो टाइम का वो लिखा हुआ है जब थे, वो एक आर्टिफिशियल सन था जो प्रियव्रता ने क्रिएट किया था. लेकिन जब ब्रह्मा जी गए फिर उन्होंने बोला कि भैया ये मत करो, पूरे ब्रह्मांड में ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा. तो फिर देन स्विच ऑफ, एक सन को स्विच ऑफ कर दिया उन्होंने. वो सन अभी भी है, किसी को पता चलेगा कहाँ पे उनका वो बटन है तो दे कैन स्विच ऑन दैट बटन. इट इज सेड दैट व्हेन द प्रलय विल कम, when the land has to be so bombarded with lot of heat, that time वो second sun को वापस ऑन किया जाएगा. Those sun का heat earth पे गिर रहा है and it will automatically catch fire everywhere, fire वो टाइम पे किया जाएगा. How it is, आप कहाँ देखोगे कांच को? In the space there is, you have to search the whole space. We have not searched even 5% of the space. How will we reach? I think China is also creating artificial sun. The success mila nahi mila, I don't know, but they are trying. They have some success. You know this? If you can, someone can go. That China is trying to create an artificial sun, not as big as Priyavrata, but छोटा सा, sample sun. You don't know about this?
China sun? Yeah. So it can be done because Devavrata did it. So he knew. So this technique was there, taught in Gurukul. How to use light as a weapon or light as a source, many other, various source. Electricity. You think इनके पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, अभी ढूंढी है. आपको लगता है कि इतना हैवी ज्वेलरी पहन के एक किंग्स और क्वींस इतनी गर्मी में रह पाते थे? आपने कभी देखा किंग्स इतना हैवी ज्वेलरी पहनते हैं? मुकुट, सर पे मुकुट, इतनी ज्वेलरी. उनकी वाइफ सिल्क इतनी हैवी ड्रेसेस पहनेंगी पूरे दिन भर वो ड्रेस. हाउ मेनी ऑफ यू कैन बी इन सच अ ड्रेस? हम शादी में जाते हैं ना पहन के हैवी, हमको लगता है 2 घंटे में अरे बाप रे बाप गर्मी लग रही है, जल्दी जाओ एंड गो बैक टू आवर नाइट ड्रेस और सम नॉर्मल ड्रेस. पीपल can't wear it now. So for 2-3 hours, and you think वो टाइम पे पूरा दिन भर all these queens and all these, they were decked up, with such heavy dresses. अभी तो हम एक लहंगा पहनते हैं, शादी में जो पहनते हैं उनको लगता है अरे बाप रे इतना heavy है. People can't wear it now. So for 2-3 hours, and you think वो टाइम पे पूरा दिन भर all these queens and all these, they were decked up, with such heavy dresses. अभी तो हम एक लहंगा पहनते हैं, शादी में जो पहनते हैं उनको लगता है अरे बाप रे इतना heavy है. वहां पे तो क्वीन जो होते थे दिन भर लहंगा पहनना है उनको, इतना हैवी. वो उनका नॉर्मल ड्रेस होता था. जो हमारा शादी का ड्रेस होता है, लहंगा और जो मेल पहनता है एकदम सूट, जो भी है, वो किंग्स लोग का नॉर्मल ड्रेस होता था. वो एक दिन पहनने में हालत खराब हो जाती है, गर्मी और पता नहीं क्या क्या है, पसीना यहाँ वहाँ, इतना टॉर्चर हो जाता है वो. और वहां पे वो दिन भर बैठ के उसी में झगड़ा भी कर लेते थे, वो और भी कोई पहन के किंग कर लेते थे. तो आप लोगों को लगता है बिना इलेक्ट्रिसिटी रहते थे वो लोग? अभी आप एसी में भी नहीं रह सकते इतना हैवी पहन के. और वो टाइम पे बिना लाइट के यू थिंक द होल डे द किंग एंड द क्वीन यूज्ड टू सर्वाइव? नो, द लाइट वाज देयर. The light was there. There was a good light that time. Or if you कैसे you can see, ये पवन क्या प्रवीण का देखा है किसी ने? प्रवीण का, he has shown how people in the ancient time used to have chargeable batteries. From batteries से उन light produce करते थे. प्रवीण मोहन का देखा है किसी ने? प्रवीण मोहन. Trees, and they used to produce light from those batteries. He had scientifically shown on the, on his YouTube channel, Praveen Mohan. If someone wants to understand how light was produced, previously, बहुत पुराना episode होगा, 2 साल पुराना होगा उसका episode. You can just search, Praveen Mohan, electricity, bulb or light, batteries like that, ही पूरा उसने अपने रूम के अंदर बताया कि हाउ द किंग्स एंड इन इंडिया में किंग्स पहले लाइट कैसे बनाते थे. राइट, वेरी नाइस. सम ऑफ हिज वीडियोज आर वेरी नाइस. सो दिस इज हाउ द लाइट. एंड देन सोशियोलॉजी, society progress and the way to foresee its destruction. How, data, big data. Sociology means big data. So everything, all these things are taught in Gurukul. And when, and the knowledge is given to Brahmana and the Kshatriyas. And when they have thus this knowledge, they have the data, कि भैया अब, जैसे हम डेटा देख के मालूम करते हैं ना कि लोग 80% संतुष्ट है, 70% संतुष्ट हो गए, बिग डेटा. फिर क्या चीज से संतुष्ट नहीं है, कौन सी चीज लोगों को गुस्सा दिला रही है, वो बिग डेटा काम करता है वो. तो वही था सोशियोलॉजी. तो किंग अपने फीडबैक रखते थे अपने पास में कि प्रजा में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या आ रही है, एंड देन दे यूज्ड टू करेक्ट दैट. सो दिस बिग डेटा टीम वाज दैट टाइम. सो ऑल दीज थिंग्स वर देयर. दीज आर ऑल गवर्नेंस एंड वॉरफेयर
things, which were taught in the Gurukul. So don't think, हम जब गुरुकुल की बात करते हैं, वर्णाश्रम की बात करते हैं, we are talking of some orthodox kind of thing, जिनका आज के समाज से कुछ लेना देना नहीं है. What I've spoken to you, ये टेक्नोलॉजी आज के टाइम में भी नहीं है. टेक्नोलॉजी हमारे पास में, even today we don't have these technologies with us. You agree or no? You will agree or no? Even today we don't have all these technologies we can't talk with aliens. We don't have anti-gravity vimanas, aircraft in such a large scale. We don't have this alchemy where you can turn metal into gold. We don't know. We don't have knowledge of the cosmology, how this planet is created. Nothing. And microbiology, microbiology mein viruses and all. There was this, this जो बायो वेपन जो अभी है, ये नया नहीं है. ये कोई नया नहीं है. पहले किंग्स करते थे, बनाया. दूसरी किंग, सामने वाली किंग की सेना बहुत स्ट्रांग है. 10 लाख की सेना है. हमारे पास 5,000 की सेना है. कैसे करें हम? बायो वेपन यूज करते थे रैट्स के थ्रू. रैट होते थे फील्ड में, वॉर में रैट होते थे, या बीज होते थे, या बर्ड्स होते थे. उनके थ्रू बायोलॉजिकल वेपन फैलाना दूसरे इसमें. एंड वो फैलाया, एंड वो जो उसकी चपेट में आए तो वहां पे वायरस हो गया, बुखार हो गया, ये हो गया. वो फाइट के लिए रेडी नहीं रहे. Not even 25%, just 5%. 25% ही बहुत ज्यादा. 5% of the whole cosmos we know. Because 95% तो black matter ही है cosmos में. So these are not something new. ये सब previously kings सब आजमा चुके हैं. जैसे ये जो था अश्वत्थामा मर गया, ये क्या था? ये कोई खाली एक जन के बोलने से ना कोई वो कृपा द्रोणाचार्य इतने मूर्ख है, एक जन के बोलने से खाली इससे वो मान लेंगे. इस गुरु, सबका गुरु है वो. तो हमने बहुत सिंप्लीफाई में बता दिया महाभारत में. अश्वत्थामा मर गया और उसने सुना और वो बैठ गया. वहां पे उसके पीछे पूरा एक सिस्टम लगा था. वो प्रोपेगेंडा को रियल लगे, वो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए पूरा एक सिस्टम लगा था. वो पूरा उनके लोग मिल गए थे उनके सामने वाले लोगों से. वो बोले थे अश्वत्थामा मर गया, हमने देखा ये वो. एंड वो न्यूज सब लोग बात कर रहे थे. एंड मुझे पहुंची द्रोणाचार्य पे. देन ही उसको बोलते प्रोपेगेंडा वॉरफेयर. तो महाभारत में तो हमने प्रोपेगेंडा देखा ही. हमने कृष्णा ने कितने का प्रोपेगेंडा किया ऐसा अश्वत्थामा को मराने के लिए, सॉरी द्रोणाचार्य को मराने के लिए. देन भीष्म पितामह को मारने के लिए शिखंडी को लेके आ गए. All these things we have seen. Biological warfare also we have seen. So these are all, these are all things that are taught in the Gurukul. These are all high-tech knowledge. इससे क्या होगा, a king who has all these knowledge will be, he'll be a very strong king. Right? And a Brahmana who has that knowledge, on the head of that king he's sitting and guiding that king perfectly on the basis of Shastra, not on speculation. Just Shastra कैसे वर्क करना है आपको. आपको अपने माइंड का नहीं सुनना है, आपको अपने इंटेलिजेंस का नहीं सुनना है, आपको शास्त्र का सुनना है. तो वो सुनने के लिए यू हैव टू सी थ्रू द आईज ऑफ नॉलेज. वो सुनने के लिए एज अ ब्राह्मणा, तो ही विल बी टेकिंग गाइडेंस. ये टाइम पे जैसे पहले होता था ये ऋतु फाइट के लिए है कि नहीं सही, वो सब भी क्या एटमॉस्फेयर है, क्या है, वो सब देख के किंग अटैक करते थे. वो सब गाइड कौन करता था? वो सब गाइड कंसल्टेंसी होती थी, ब्राह्मण होते थे, वो गाइड करते थे किंग को. ये और पूरा डेटा होता था उनके लिए कि भैया इतने लोग हैं, इतने दिन के लिए इतना अनाज चाहिए. ऑल दैट बिग डेटा दे हैड. देन दे वेंट टू द वॉर एंड दे हैड फुल. सो व्हेन यू हैव सच अ किंग, स्ट्रॉन्ग किंग, एंड देन द ड्यूटी ऑफ द किंग इज टू गिव प्रोटेक्शन टू हिज प्रजा. तो उसमें विमेन प्रोटेक्शन, चाइल्ड प्रोटेक्शन, काउ प्रोटेक्शन, ब्राह्मणा प्रोटेक्शन, ये 4 को प्रोटेक्शन इज अनिवार्य. क्षत्रिय उनको उनका पूरा जो गवर्नेंस मॉडल होता है वो इन 4 के प्रोटेक्शन के ऊपर बेस्ड होता है. रियल क्षत्रिय का विमेन प्रोटेक्शन,
no women should be exploited. No women can be abused. In the, in the praja. Even if there's a rumor that so and so women has been abused or, has taken, done something wrong, disband हो जाती है सोसाइटी से, क्योंकि एक खराब फल पूरे समाज को खराब कर देता है ना. एक खराब फल बास्केट में will make all rest फल also useless. तो सिमिलरली इतना था उनका कि समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, तो वहां पे कोई भी मिस गवर्नेंस नहीं हो, कुछ चोर थीफ, like you will not know that in Vedic time there was no lock and key. There was no lock and key. People didn't require lock and key because the governance was so strong, and the law and order was so strong. Plus the people were rich also. They were satisfied also because they were happy with the governance model of the king. So they didn't have to rob anything. किसी को रॉब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी वो टाइम पे. वहां पे तो बस ले लो. And secondly, people were not attached to wealth. People were not, because the king जो था, king के पास में अच्छा wealth है, but king wealth से attached क्यों नहीं हो पाते थे? King एक wealth से attached क्यों नहीं हो पाते थे? क्यों नहीं होते थे? Why? Because the brahmana is there qualified. वो उनको detach रखते थे हमेशा, knowledge देके, ज्ञान देके. So like that, whole these, society was very, and the Vaishya used to grow crops, and the Kshatriya will give land to the Vaishya and collect taxes, from them, and they grow crop and they give it to everyone. And the Vaishyas couldn't hold land. Land was with the king only. So land hold किया तो greed आ जाएगा उसमें. All land, sure land. The land was owned by the Kshatriyas. वो land देते थे वैश्य को, उसमें ग्रो करो, अपना खाओ, लोग बेचो और टैक्स दो, ग्रो करते रहो उसमें. And the rest society, like Shudras and everyone, technicians and artisans and singers and all, they all are working, as per, and they're earning their livelihood by that. So this whole society was, very properly meant. That's what Prabhupada is saying here. That, but everyone will be elevated to the spiritual platform by spiritual activities, which we have prescribed. There is no inconvenience even for the Sudras. And सब साथ साथ में भक्ति कर रहे हैं. तो देवी वर्णाश्रम और वर्णाश्रम में क्या फर्क है? देवी वर्णाश्रम और वर्णाश्रम में क्या फर्क है? ग्रीड, एंगर, एनवी, ये देवी वर्णाश्रम में डेवलप नहीं होती है. तो इससे एवरीवन इज वेरी सेटिस्फाइड. The Brahmana is satisfied with his, guidance given to the king. He will not become corrupt. The king is satisfied, with what he has. He will not become caring. मुझे वो भी kingdom चाहिए. It's another kingdom. And the Vaishya is satisfied with what they are growing. They don't want more and more and more land or more people like, working as slaves, And the Sudras are satisfied with them. So all of them are doing Krishna conscious activities. इसलिए Vedic Devi Varnashram में सुबह 10-11 बजे काम चालू होता था और शाम के बीच में लंच 1 घंटे का ब्रेक होता था और शाम में 5 बजे खत्म काम. तो होल सोसाइटी को वेरी मच हैप्पी. एंड फिर नहा धो के 6 o'clock मंदिर जाओ, कीर्तन करो, कथा करो, 7 बजे आरती अटेंड करो, घर पे आओ. आधे लोग मंदिर में भोजन खा लेते, तो उस लोग घर पे आके भोजन खा के 8 बजे तक सब कुछ खत्म होके सो जाओ 8-9 बजे और सुबह फिर जल्दी 4 बजे जल्दी उठो, मंगल आरती में जाओ. सो दिस इज द सोसाइटी, सिंपल लिविंग बट वेरी प्रॉस्परस सोसाइटी, बिकॉज द सोसाइटी हैड नो ग्रीड. जिस सोसाइटी में ग्रीड नहीं होगा तो आपके पास में अपने आप ही अच्छा धन आ जाएगा. ग्रीड एक आदमी का लेता है और दूसरे आदमी को अमीर बनाता है. जहां पे सोसाइटी में ग्रीड नहीं है, उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी सारी सब कुछ, एंड उसके अंदर सबके पास में सब कुछ होगा. इसमें वो स्कैरसिटी नहीं होगी. आज की सोसाइटी में स्कैरसिटी है, इससे क्योस है. ग्रीड के कारण हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए, राइट. अभी मैं पढ़ रहा था आर्टिकल, दे आर वर्किंग ऑन एज रिवर्सल. एज रिवर्सल, और old person can, by adding some
DNA from a younger person can be turned into a young person. तो उसमें पता क्या कॉन्सेप्ट है वो, क्या कॉन्सेप्ट है वो, उसमें क्या होने वाला है, डेमोनियक। और अच्छा लगता है ना कि एज हमारी एज कम हो जाएगी, वाह कितना अच्छा। बट उसमें क्या जो दिस आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ लेमैन में, ये गवर्नमेंट के थॉट प्रोसेस में, दिस इज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसका थॉट प्रोसेस, इसका डॉक्यूमेंट आई वाज रीडिंग। क्या होगा, आपने कुछ मिस्टेक कर दिया, ठीक है, कुछ भी क्राइम कर दिया आपने, या कुछ मिस्टेक हो गया, बिकॉज सब तो गवर्नमेंट ओन्ड होगा, तो आपने गवर्नमेंट के, आपको गवर्नमेंट घर देगा समझो, और वो घर में आपसे कुछ जल गया हो, या वो घर में आपसे कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, या वो घर में आपसे रेंट बराबर नहीं हो, कुछ भी, तो देन व्हाट दे कैन डू इज दे कैन रिमूव योर लाइफ, वो डीएनए। तो आप अगर 20 साल के हो, आपने कुछ गलती कर दिया, कुछ सेक्स कर लिया, कुछ भी जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन में नहीं है वो आपने कर लिया, तो आपके अंदर से डीएनए निकालेंगे, वो 40 साल 50 साल का डीएनए निकालेंगे और किसी और को दे देंगे। वन मिस्टेक एंड अ होल लाइफ इज गॉन। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का डॉक्यूमेंट है, ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। दे आर थिंकिंग ऑन दिस, हाउ दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, हाउ वर्ल्ड गवर्नमेंट जब होगा, एंड देन स्लोली दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स। आपको चिपिंग करेंगे, ये सब करेंगे, इट विल बिकम सेमी रोबोट्स। तो आपके पैदा होंगे तो सबसे पहले तो आपके बॉडी में इतने वैक्सीन डाल देंगे वो लोग, मलेरिया का वैक्सीन, अभी कोविड का अभी होने वाला है, पैदा होगे कोविड का वैक्सीन लेके पैदा होना पड़ेगा आपको, मलेरिया का वैक्सीन, निमोनिया का वैक्सीन, पोलियो का वैक्सीन। फिर तो आप 5 साल के हो, जब तक तो आप 10 साल के हो, या क्योंकि 8 साल तक 9 साल तक वैक्सीन लगते रहते हैं, 10 साल तक तो आपकी बॉडी आधी केमिकल की हो गई, इतना केमिकल गया आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी का डीएनए वैसे चेंज कर दिया उन्होंने। नाउ यू आर अटैच टू ऑल दीज, देन आपको चिप कर देंगे वो, कि आपका वो अभी एलन मस्क ने किया है ना, चिपिंग इन द ब्रेन, चिप कर देंगे, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ कर रहे हो, पूरा ट्रैक करेंगे आपके ऊपर। उसके बाद में धीरे धीरे जब उनके पास में ये परफेक्ट हो जाएगा एज रिड्यूसिंग का, तो ये डालेंगे कि अब इफ यू हैव गुड क्रेडिट्स यू विल गेट गुड एज। अगर आप 40 साल के हो तो आपकी एज कम कर देंगे, अगर आपका क्रेडिट अच्छा है तो। यदि आपका क्रेडिट खराब है, यू नॉट मिसबिहेव इन द सोसाइटी, अब कुछ गलत काम है, तो आप अगर 20 साल के हो तो आपके डीएनए में से निकाल देंगे एज, और आप अचानक 20 से 50 साल के हो जाओगे, ओल्ड हो जाओगे, रिंकल्स आ जाएंगे, आपके अंदर का जो ऊर्जा है, यूथनेस है, वो निकाल लिया उन्होंने डीएनए के थ्रू, एंड वो किसी और ओल्ड इंसान में डाल दिया, वो आदमी यंग हो गया और आप ओल्ड हो गए। दिस इज रियली गोइंग टू हैपन। ये ग्रीड है, ग्रीड टू लॉर्ड ओवर द यूनिवर्स, लॉर्ड ओवर, अपने आपको भगवान बनाने का ग्रीड। दिस इज द डेमोनियक मेंटालिटी दैट इज गोइंग टू हैपन, दिस इज द फ्यूचर। ये कोई हमें बात नहीं है। हमें लगता था 50 साल पहले कि हमारे पास में ऐसे ऐसे मोबाइल फोन होंगे, या ऐसे ऐसे चैट जीपीटी आ जाएगा, जहां जो सबको अनएम्प्लॉयड कर देगा। नहीं सोचा था हमने। आज हम देख रहे हैं, हमारे खुद के लाइफ टाइम में हम देख रहे हैं कैसे चेंज हुई है। वो पेजर के जमाने से हम आज वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स के जमाने में आ गए, जहाँ पे आप गॉगल्स पहनो और आप नए वर्ल्ड में पहुंच जाओ। 3D एनिमेशन हो जाए, आप होलोग्राम से किसी और से बात कर सको। एंड उस टाइप की टेक्नोलॉजी हमने खाली 30 साल में चेंज होती हुई देखी है हमने। क्यों हो रहा है सर? अनवांटेड डिजायर, ग्रीड, कंट्रोल, सब पे कंट्रोल चाहिए हमको, ये होता है। तो वरना इसी का तोड़ एक ही है, लोगों को बताना कि भैया यू आर बीइंग टर्न इनटू अ रोबोट, कम लिव विद अस, सिंपल लिविंग हाई थिंग। इसे प्रोग्राम बोलते हैं यहाँ पे बार बार। द वर्नाश्रम कॉलेज हैज टू बी एस्टैब्लिश इमीडिएटली, जहाँ पे लोग एक सात्विक लाइफ जिए। अभी आप एक राजसिक लाइफ जी रहे हो, तामसिक लाइफ जी रहे हो, और आपको फोर्स किया जा रहा है जीने के लिए तामसिक लाइफ, राजसिक लाइफ। आपको इतना उलझा दिया गया है पैसे 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 में कि आप सोच नहीं सकते कुछ और। यू हैव नो टाइम टू इवन थिंक कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ कहाँ जा रही है। घरों की तरह सुबह से शाम लगे हो, क्योंकि आपको आपके बिल्स पे करने हैं,
आपका आपको आपको आपके EMI पे करने हैं, आपको आपके बच्चों के ट्यूशन फीस या कॉलेज स्कूल कॉलेज की फीस पे करने हैं, घर का राशन लाना है, तो उसके लिए आप बस बोथ हस्बैंड एंड वाइफ एंड विदाउट इवन थिंकिंग कि ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ में, वी आर जस्ट टर्निंग इनटू रोबोट्स। सोच ही नहीं पाते हैं, वो बुद्धि उनमें काम ही नहीं कर पाती, बिकॉज आपका प्रोग्राम प्रोपेगेंडा, इसको बोलते हैं ना प्रोपेगेंडा, जो वॉरफेयर मैंने बताया, वो ये लोग भी यूज कर रहे हैं प्रोपेगेंडा कि अरे ये लाइफ ये आपको हैप्पीनेस देगी, और इसी के यू बिकम अ बिजनेस, बिकम अ IIT will be happy, you become this, you'll be happy, you have this, that, no? ये आपको ऐसे आपको लोगों को रोबोट्स बना रहे हैं, बट हमको उसका ऑल्टरनेटिव है, हमको उनको सात्विक बनाना है, फिर से ह्यूमन बनाना है, राइट? इसलिए प्रभा बोल रहे हैं कि इमीडिएटली शुड बी, बिकॉज लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल आर बीइंग फोर्स्ड टू टेक। अभी कोविड आया, सबको वैक्सीन लगाना पड़ा ना, कि सब, तो ये प्रोपोगेंडा, फियर साइकोसिस, कि अब कुछ नहीं, अब तो आप लोग को लेना पड़ेगा वैक्सीन, एक और वायरस आएगा फिर लोग डर जाएंगे। इतना आसान है ना लोगों को कंट्रोल करना, लोगों का माइंड कंट्रोल करना। ओनली 0.08% पीपल डाइड, बट इवन देन एवरीवन बिकम सो फियरफुल कि भाई अब मेरा नंबर आने वाला, चलो जाके वैक्सीन ले लो। और वो वैक्सीन में क्या है, फाइजर से जाके देखो अभी क्या क्या निकल रहा है, मॉडर्ना एंड फाइजर का, है ना, वहां पे आपके अंदर कैंसर के वायरस, बैक्टीरिया निकल रहे हैं, कैंसर ये हो रहा है, वो सो मेनी ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सो मच। आई गोइंग टू टेल यू, मोर पीपल आर गोइंग टू डाई फ्रॉम वैक्सीन देन एक्चुअली फ्रॉम द 50 मिलियन पीपल। किसने मरे थे? हाँ, 1 करोड़ लोग स्पाइन स्पैनिश फ्लू से मरे थे। वो टाइम में पॉपुलेशन कितना था? वो टाइम में पॉपुलेशन 100 साल पहले कितना पॉपुलेशन था वर्ल्ड का? ओके, बट किल्ड वो 15 मिलियन, 5 करोड़ लोग मरे थे। 33 अमाउंट वर्ल्ड पॉपुलेशन एट दैट टाइम। नाउ इमेजिन, हमने वो भी उसको भी झेला है हमने, और हम कोविड से इतना डर गए थे, सब ने कोविड के वैक्सीन ले लिए। 1.8 मिलियन पॉपुलेशन था, मतलब 200 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन था वो टाइम पे। उसमें से 50 मिलियन, मतलब 5 करोड़ लोग तो मर गए थे। और अभी हम कोविड, देखा प्रोपेगेंडा, न्यूज कैसे फैलाती प्रोपेगेंडा, ले लो ये हो रहा है, ऑक्सीजन कमी, लोग मर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं फिर ऑक्सीजन के लिए, होर्डिंग चालू हो गई, होर्डिंग हुई ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन नहीं मिला तो लोग ज्यादा मर गए, इतना के कोविड से मरे। ना अंडरस्टैंड कि कैसे प्रोपेगेंडा करती है ये वेस्टर्न वर्ल्ड। तो ये प्रोपेगेंडा को हमको ये करना है, डिसमेंटल। अगर हम नेचुरल चीज खाएंगे, ऑर्गेनिक चीजें, वर्णाश्रम फार्म में रहेंगे जहां पे पोल्यूशन नहीं है, अच्छा ऑक्सीजन है वहां पे, नाइस ऑक्सीजन, नाइस वाटर, शुद्ध पानी, शुद्ध दूध, शुद्ध हर्ब्स मिल रहे हैं हमको, वेजिटेबल मिल रहे हैं, हमारा इम्यून सिस्टम कैसा होगा? हमारा इम्यून सिस्टम कैसा हो जाएगा? इम्यून सिस्टम हमारा बताओ। यहाँ पे शुद्ध लैंड है, शुद्ध खाना है, शुद्ध पानी है, शुद्ध दूध है, शुद्ध घी है, शुद्ध एटमॉस्फेयर है, कैसा होगा? लोग क्यों डरे पता है क्या? लोगों को पता है कि उनका इम्यून सिस्टम खराब है, वो मर जाएंगे, इसलिए लोग क्या डर गए? उनके शहर में रहे, अशुद्ध खाना खाया है, अशुद्ध पानी पीते हैं, अशुद्ध पोल्यूशन है एटमॉस्फेयर में, उनको पता है कि उनका अंदर का सिस्टम पूरा खराब है, ये नहीं झेल पाएगा कोविड। बट जो आदमी वहां पे रह रहा है, जब उसका सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा तो क्या कोविड कर पाएगा उसको? क्या कोई भी डिजीज कर पाएगा? छोटा मोटा फ्लू वलू होके 5-7 दिन में ठीक हो जाएगा वो। तो ये होता है नेचुरल वे में लिव करना, ये हमको लोगों को देना है, सिंपल लिविंग। लोग सब संतुष्ट हैं, लोग पागल नहीं हो रहे हैं ग्रीड के कारण। जब हम देखेंगे लोग कि अरे ये सोसाइटी इतनी हैप्पी सोसाइटी है, सब इतने प्रॉस्पेरस हैं सोसाइटी में, इतने आनंद में, तो लाखों के साधन प्रभुपाद बोलते हैं लोग आएंगे हमारे पास। देखो आज की तारीख में सबको क्या चाहिए? अपने लाइफ में पीस चाहिए, संतुष्टि चाहिए। आदमी क्यों कमाता है? आदमी कमाता इसके लिए है बिकॉज ही वांट हैप्पीनेस इन हिज लाइफ, पीस इन हिज लाइफ, संतुष्टि इन हिज, सेटिस्फैक्शन इन हिज लाइफ।
जब वो देखेगा कि अरे ये मॉडल है, यहाँ पे हमको शांति है, सेटिस्फैक्शन है, पीस है, हैप्पीनेस है, ये और प्रॉस्पेरिटी भी है। ऐसे नहीं कि कोई लोग सब भूखे मर रहे हैं, सब अच्छे से खा रहे हैं, तो आदमी को सोचेगा नहीं अरे यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ दिन रात, और मैं 2 चपाती खाता हूँ, मैं इतना गंदे खाना खा रहा हूँ, सब पेस्टिसाइड वाला खाना खा रहा हूँ, मैं इतने गंदे पानी पी रहा हूँ, सब क्या बोलते हैं क्लोरीन और ये सब का पानी है इसमें, ये गंदी हवा मैं ब्रीथ कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो आनंद, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक काम करते हैं, उसमें भी 1 घंटा बीच में ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में भी इतने प्रॉस्पेरस है, बाद में भी इतने आनंद में है, फिर बाद में भी इतने सेटिस्फाइड है, फिर बाद में भी इतने एजुकेटेड है, फिर बाद में भी इतना नॉलेज है इनके पास में, तो वो लोग अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाएंगे हमसे। और फिर भी और ग्रीड भी नहीं है इनमें, इतने शांत लोग हैं, तो कोई भी इंसान उनसे अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यही मॉडल हमको प्रभुपाद ने बोला लोगों को दिखाने के लिए, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का। इसी के कारण हम जो क्योस है सोसाइटी में, जो ये बता रहे īšāvāsyam sarvam, हम समझेंगे कि भगवान का सब कुछ है और भगवान को ही अर्पित होना चाहिए सब कुछ, और हम अपना उतना ही कोटा ले रहे हैं जितना हमारे लिए है, और दूसरा के कोटा हम नहीं लेंगे तो दूसरे के लिए है, क्योंकि और ये वही कर सकता है जो एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान है। नॉर्मल मटेरियल इंसान नहीं कर सकता, मटेरियल इंसान में हमेशा ग्रीड होगी, भक्ति नहीं कर रहा है, भगवान का नाम जप नहीं कर रहा है, तो हृदय की शुद्धि नहीं हुई इसकी, तो ग्रीड हमेशा रहेगी उसमें, जिसमें रहेगी ग्रीड, वो इंसान के अंदर ये कॉन्शियस डेवलप नहीं हो सकती है कि मुझे शांति कैसे जीनी है, मुझे सेटिस्फाई कैसे रहना है। ये कृष्णा कॉन्शियस एटमॉस्फेयर में ही हो सकता है। और इसीलिए जो ये लाइफ है सेटिस्फाइड लाइफ, हैप्पी लाइफ, जहाँ पे हम भगवान की भक्ति कर सकें, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या था? धर्म के साथ अर्थ कमाओ, धर्म के साथ धार्मिक काम करते करते अर्थ कमाओ, या आपका जो आप पैसे कमा रहे हो धार्मिक कामों के थ्रू कमाओ। धार्मिक काम मतलब झूठ नहीं बोलना, चीट नहीं करना, ऑल द 4 वाइसेस जो है, क्लीनलीनेस, प्योरिटी, पीसफुलनेस, ये सबको मेंटेन करके धन कमाना है धार्मिक काम है। धर्म से अर्थ कमाओ, अर्थ से काम करो। ठीक है, आपको काम की जरूरत है, काम सन्यासी नहीं कर सकते, ब्रह्मचारी नहीं कर सकते, वानप्रस्थ नहीं कर सकते, लेकिन गृहस्थ कर सकते हैं। ये काम है, आपको उसका भी दिया है। तो किंग ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य सब में गृहस्थ होते हैं, तो उनके लिए धर्म में काम की व्यवस्था भी ठीक है। यू कैन मैरी, कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, बट डोंट गेट अटैच्ड। लाइफ ऐसी है, मतलब सोसाइटी ऐसी है, ये सब आपको उस तरफ पुश कर रहे हैं, क्योंकि आपको उसी प्रकार की नॉलेज मिली है गुरुकुल से कि आपको जब आप सोसाइटी में जाओ, यदि आप वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, अपना अपना काम करो धर्म के अनुसार, उससे आपको थोड़ा अर्थ मिलेगा, उससे आप थोड़ा काम कर सकते हो, लेकिन फिर आपका गोल मोक्ष है और फिर प्रेम है। ये पूरी सोसाइटी इस तरह से एस्टेब्लिश थी। तो इसमें आप और कुछ एक्सेप्शंस बहुत कम होते हैं सोसाइटी में, मॉडलिटी ऐसी होती है। द वर्नाश्रम सोसाइटी इज मॉडल्ड इन दिस, ये फ्रॉम धर्मा टू मोक्षा, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोग्रेशन। हर कोई इंसान 24 घंटे भक्ति नहीं कर सकता, तो उसको इस ग्रेजुअल प्रोग्रेशन से निकलना पड़ेगा। अपने आप की कॉन्शियसनेस अपने आप के काम करते करते डेवलप करो और अपने आप प्योरीफाई हो, और वो जब वो कॉन्शियस डेवलप हो जाएगी धीरे धीरे करते करते देन आप मोक्ष की तरफ जा सकते हो फिर, और फिर मोक्ष के बाद में भक्ति की तरफ, प्रेम भक्ति की तरफ जा सकते हो। This is what is, simple living, high thinking. What I was saying. Okay, Hare Krishna. Now we Krishna, Kirtana, Ganana, Karnapa.